Hello friends, welcome to the third episode of Astro Talk with Nishan Gore on Stargazing India. I would like to invite today Miss Bansi, who is joining in just 1 or 2 minutes. So, we are going to live with her and we are going to discuss so many things about books. Yes, she is very fine book reader and she is very fine book reviewer too. So she is going to talk about how to read astronomy books, how to explore the world of books with her. तो stay tuned, जमे रहिए. Okay, Bansi to join our live chat show जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक. Wonderful. So welcome Bansi ma'am. I would glad to inform all our members to share that you are a wonderful book reviewer, book reader, and the traveler. Thank you so much, Nishan. Thank you. I would like to ask our viewers to share कि आवाज साउंड एकदम प्रॉपर છે, साउंड एकदम प्रॉपर आ रहा है ना, या फिर कोई एको आ रहा है? आई गेस मुझे तो प्रॉपर आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है. हाँ, मुझे तो मुझे let's अपना hear एको from आ रहा yours. है. आपने हेडफोन यूज किया है? हाँ जी. Okay, we got a review that it's proper. So yeah. No, echo is there. Okay, I'm please. getting my own echo. Oh, okay. Here it's perfect. Like मुझे नहीं आ रही कुछ भी को. Okay. So let's start with a question. Please share something about you. Well, if I talk about my journey कि मैंने कैसे स्टार्ट किया क्या था, how was it, then it was something कि पहले I was like very normal, कभी कभी कोई बुक्स पढ़ लेती थी फिक्शन और कोई लव स्टोरी वगैरह, and then suddenly there was a change. Like I used to go to library और वहाँ पे एक बुक टॉक थी and I heard about this, it was a psychological book. एक संत आए हुए थे and he shared about this Osho book and everything, and then I was like कि भाई नहीं मज़ा तो इसमें भी है. And then I started reading this psychology books and all, and it really helped me to change my life. थोड़े स्पेसिफिक हो गई ज़्यादा करियर के लिए. And then when I was into this architecture and interior designing and all, फिर मैंने एज अ प्रोफेशन वहाँ पे स्टार्ट किया. So now I teach into it. And traveling was something कि जो मुझे पहले से करना अच्छा लगता था. So जब भी मुझे टाइम मिले तो it was a 2 day or 3 day trip, जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता था, I was into it. It can be solo or it can be with family, it can be with friends, it can be with anyone. लेकिन अगर मेरे को चांस मिलता है then I don't miss कि मैं कोई ट्रैवलिंग या कोई ट्रिप मिस आउट करूँ. then I started in with this adventures and all. एंड कैंपिंग करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नो देयर सम कनेक्टिविटी एंड देयर सम ब्रेक पॉइंट विच आई गेट व्हेन आई गो एंड आई एंजॉय दिस ट्रिप एंड एवरीथिंग. क्योंकि एंजॉयमेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके अलावा यू गेट दिस रिफ्रेशमेंट जो इट रियली हेल्प्स कि आप नेक्स्ट 6 months या 8 months अच्छे से काम कर सके. आप एकदम फ्रेश हो जाते हो. इट रियली वर्क्स वेल. So then reading and traveling का combine हुआ, because when we are in train or you have a flight journey, so you Yeah. have lot of time to read. So उसमें फिर reading start हुआ और ज़्यादा reading start हुआ. It got more and more. फिर I started doing this book talks. फिर वहाँ से करियर गाइडेंस सेमिनार स्टार्ट किए मैंने. सो इट वॉज लाइक स्टेप बाय स्टेप. अब मैंने यूट्यूब चैनल अपनी स्टार्ट की है.
सो इट्स लाइक कि भी यू, एक के बाद एक यूट्यूब चैनल का एड्रेस क्या है वो भी बता दीजिए, तो जो कोई यस भी यहाँ पर है उन्हें मजा आए तो फिर वो आपको वहां पर भी मिल सके। श्योर। स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं डिफरेंट जॉनर्स की बुक्स, और अभी तक तो मैंने सिर्फ साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बुक्स ही डाली है, उसके बुक रिव्यूज़ देती हूँ, मेजरली इन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। एंड इवन इफ यू टाइप बंसी दफ्तरी यू कैन फाइंड माई आईडी ओवर देयर। एंड उसके अलावा जो बेसिक बुक्स है, अभी जो बुक्स ज़्यादा चल रही है, दैट आर द ट्रेंडिंग बुक्स, दैट इज़ मैंस सर्च फॉर मीनिंग, फिर इकिगाई, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो सारी बुक्स पे मैंने अपने रिव्यूज़ डाले हुए हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू रीड और इफ़ यू डोंट हैव बुक इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, you can go there and you can just go through the books and the overall gist. It will really help. ओके, तो सभी व्यूअर्स को ये क्वेश्चन आएगा कि आपने अभी तक कितने बुक्स पढ़ी हुई है। Uh, okay, I don't have that into my finger counts, but there are a lot many books जो मैंने पढ़ी फिर भी है. It can be more than 50s or as such, जो मैंने thoroughly पढ़ी है. Fiction मैं काउंट नहीं करती पढ़ने में, क्योंकि fiction ओके books are something कि जो मैं टाइम पास के लिए रीड करती हूँ. So that are ओके, not अगर something अगर that add into me. अगर अगर वो इंक्लूड हो जाए तो। Maybe more than 100 or 100. ओके ओके। क्योंकि फिक्शन बुक्स लाइक कि जब मैं स्कूल में लाइब्रेरी का लेक्चर होता है, जब लाइब्रेरी पीरियड जी होता है, जी। तभी हमें टास्क दिया जाता है कि आज आपको 20 पेजेस रीड करने हैं इन द इनिशियल डेज। ओके देन टास्क मिलता है कि आज आपको यू हैव अ वीक टू कंप्लीट दिस बुक, यू हैव अ वीक टू कंप्लीट टू या बुक्स। सो माई लाइब्रेरियन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टू माई रीडिंग हैबिट्स। उसके बाद इट वॉज लाइक 7th-8th स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग फ्री होते थे, आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्ले ग्राउंड। So वाह। that is how I got reformed. ओके, सो अभी आपने बात की इकिगाई की। Yes. मैंने वो आपका रिव्यू भी पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। Hmm. आई वुड लाइक टू आस्क कि हमारे जो आज के व्यूअर्स हैं उन सब के साथ इसके बारे में कुछ अगर शेयर करें। Well, क्योंकि Ikigai. Hmm. because when we are talking about books and astronomy, so I found something there to be connected with astronomy. Yes, and that's why I'm asking to share your experience of Ikigai with all of our viewers. श्योर श्योर। लाइक इकिगाई के बारे में मैंने सुना बहुत था पहले, एंड इट वाज अ बुक कि जो मुझे पढ़नी थी, लेकिन पता नहीं वो कुछ होता है ना कि आप पढ़ नहीं पाते हो, आपको जितनी ज्यादा इच्छा होती है ज्यादा इट गेट्स डिलेड। तो मेरे Yes, साथ वो yes, हो yes. रहा था कि मेरे को बहुत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन इट व्हेनेवर आई स्टार्ट दैट बुक सम और द अदर हाउ, मुझे या तो कोई दूसरी बुक का ऑर्डर आ जाता था फॉर अ बुक टॉक, या फिर मुझे कुछ और काम आ जाता था, देयर वाज समथिंग कि मैं ये पढ़ नहीं पाती थी। बट फाइनली मुझे दिस लॉकडाउन हेल्प मी अ लॉट कि मैं ज़्यादा बुक्स भी पढ़ पाई, और वन ऑफ देम वाज इकिगाई, जिसमें मैंने ये बुक कंप्लीट की, एंड इट रियली हेल्प मी टू चेंज माई सेल्फ। एक्चुअली इकिगाई समथिंग कि आपको जो फाइंड करना रहता है, इकिगाई मीन्स लाइफ्स वर्थ। तो अगर आप कैसे अपने लाइफ में आप किसके लिए बने हो, एवरी वन हैज़ दैट एक्स फैक्टर, तो आपके अंदर वो क्या है वो आप कैसे सर्च करोगे, हाउ विल यू फाइंड दैट आउट, हाउ विल यू वर्क ऑन इट। और इकिगाई का एक बहुत अच्छा सा चार्ट है, आई जस्ट शो दैट चार्ट ऑल्सो हियर। Yeah, sure. सी इट्स अ ब्यूटिफुल चार्ट कि 4 चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। द फर्स्ट वन इज व्हाट यू लव, जो हमें अच्छा लगता है करने में। फॉर द वन दैट अगर मेरी बात करें तो ट्रैवलिंग इज व्हाट आई लव, और पब्लिक Yeah. स्पीकिंग इज व्हाट आई लव। सेकेंड इज व्हाट जी। वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को आपसे क्या चाहिए। एंड थर्ड वन इज व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मतलब आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किसके लिए दुनिया आपको पे करना चाहती है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट यू आर गुड एट। कई बार ऐसा होता है, सी इफ आई से आई लव ट्रैवलिंग बट आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो आई एम अ स्पीकर बिकॉज ये मुझे 3 चीज़ों में हेल्प करती है। द थिंग इज वर्ल्ड वॉन्ट्स मी टू स्पीक, secondly world pays me for that, and third is I am good at it. But now that I've started loving it, I'm into this and I find that this is my ikigai, because ये चारों की चारों चीज़ें हैं, then it is my mission, vocation, profession and passion, सब कुछ मिला के now I think that this turns into my ikigai. ओके, सो So जब yes. हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो Yes. एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी जो कोई भी एस्ट्रोनॉमर होगा
उसके लाइफ में भी ये स्टेज आएगा कि वो उसका ब्रेकअप पॉइंट होगा, ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा, कि वहां से उसका जो जंप होगा वो एक अलग लेवल से होगा। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमी लवर्स होंगे जो इस फील्ड के इस पॉइंट को इकिगाई के हिसाब से जान पाएंगे। सो नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, so you are a traveler and you are also a sky lover. तो पहले एस्ट्रोनॉमी का एक्सपीरियंस क्या था जब आपने तारों के भरी हुई रात के नीचे कोई कुछ घंटे गुजारे होंगे, जैसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन यू रिमेम्बर अराउंड अबाउट ऑफ दैट? वेल आई वुड से कि मैं ट्रैवल तो जैसे मैंने बोला कि इट्स लाइक मेरे को कुछ भी टाइम मिले मैं ट्रैवल पे निकल जाती हूँ। सो आई एक्सप्लोर्ड राजस्थान, आई हैव एक्सप्लोर्ड नॉर्थ इंडिया, आई हैव एक्सप्लोर्ड साउथ। तो अगर जब भी मुझे टाइम मिलता है बिटवीन शाम को आफ्टर डिनर, देर आर फ्यू आवर्स की जो मैं बिताती हूँ अंडर द स्काई। इट्स लाइक कि वहाँ पे रहती अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, रिलेटिव्स के साथ हूँ या किसी के भी साथ हूँ, वी जस्ट स्लीप देयर। और क्योंकि मेजोरिटीली आई प्रिफर कि हम लोग टेंट में रहे, क्योंकि होटल्स आर, आई डोंट फाइंड होटल गेटिंग कनेक्टेड टू मी एंड माई ट्रैवलिंग पैशन, सो आई प्रिफर टेंट्स। और जब हम लोग वहाँ पे आराम से सोते हैं नीचे, देन वी सी अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स, लाइक लॉडेड विद स्टार्स। तो और स्पेसिफिकली आई वुड से कि जब मैं नॉर्दर्न एरिया में होती हूँ, दैट इज डलहौजी, मनाली और समवेयर, मैं स्टार्स को ज़्यादा नज़दीक पाती हूँ। मतलब आई फील देम वेरी बिग एंड वेरी कनेक्टिव। कई बार ऐसा होता है कि इट स्पेंड्स 2 to 3 hours और आई एम इन टू दैट कनेक्शन कि पता नहीं मेरे को क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं। आई गेट सेल्फ लर्न इन टू दैट टाइम। और नॉट ओनली दैट, देर आर सम इमेजिनेशन विच आई क्रिएट, जो हम सब क्रिएट करते हैं या एक्चुअली। या तो वो जो मज़ा है, वो जो टाइम होता है 2 घंटे का, 3 घंटे का जो हम लोग स्पेंड करते हैं, इट रियली हेल्प्स टू रिफ्रेश योर ओन सेल्फ। लाइक वो बॉडी में पूरा ना क्या बोल सकते हैं उसको, देर नॉट वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस थिंग्स, बट देर या स्पेशल कनेक्शन जो हमें फील होता है, जिनसे हम कह सकते हैं कि वंस यू डू दैट यू विल नेवर फाइंड कि आप लोग वो चीज़ सिटी में कभी नहीं ढूंढ सकते। कई बार आई हैव सो हर्ड पीपल सेइंग। सो आई वुड लाइक टू आस्क आवर व्यूअर्स कि कभी आपने सिमिलर वे ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि यस, दिस इज द सेम थिंग फॉर एवरीवन। ट्रू ट्रू। और एक ये भी होता है कि अगर आप लोग, ऑब्वियसली वी ऑल लिव इन मेट्रो सिटीज नाउ, तो यहाँ से अगर आप लोग या स्टार्स देखोगे तो आपको वो कनेक्शन, वो चीज़ें शायद ही फील होगी बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड ऑल ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई हिल स्टेशन है तो वहाँ पे जो मज़ा आता है, जो पीस जो आपको फील होता है, दैट इज अनडिफाइंड। आप वो डिफाइन ही नहीं या कर सकते, यू कैन जस्ट फील दैट इट्स अ ब्यूटीफुल इमोशन। यस, एग्री एग्री। सो ऐसा कोई स्काई का कुछ आप स्काई में देख रही हो और कुछ ऐसा शायद टूटता तारा देखने को मिल जाए या फिर कोई सैटेलाइट जाता हुआ देखने को मिल जाए, तो ऐसा कुछ वेल एक्सपीरियंस हुआ है? टूटता तारा मैंने बहुत बार देखा है, लाइक स्पेशली ओके। व्हेन आई एम टू या नॉर्थ एंड ऑल। यहाँ पे मैं राजकोट से हूँ, तो राजकोट में मैंने शायद एक ही बार देखा है, एंड दैट वाज आल्सो इनटू लेट नाइट। बट नॉर्थ में मेरे को ज़्यादातर देखने को मिले, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि एवरी टाइम आई गॉट दैट या परफेक्ट टाइमिंग कि मैं या प्रे भी कर सकूँ, मैं इंजॉय भी कर सकूँ व्यू। बिल्कुल। तो वो मैंने देखा है। एंड टू से अबाउट सैटेलाइट एंड ऑल, आई एम नॉट श्योर दैट दैट वाज अ सैटेलाइट, बट कई बार ऐसा होता है या कि व्हेन यू हैव दैट लोकल गाइड विथ यू, वो बताते हैं कि सी देयर इज समथिंग यूनिक, दैट्स नॉट स्टार बट वो कुछ है। तो वो चीज़ जी। हुई है। लेकिन दिस ऑलवेज कि एस्ट्रोनॉमर्स के अलावा सबके पास बहुत कम नॉलेज होता है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। या तो इसकी वजह से वी कैन नॉट डिफाइन कि वो एग्जैक्टली क्या था, बट या दैट वाज समथिंग। एंड आई ऑल्सो शेयर कि भाई कई बार ये न्यूज़ में आता है कि आज आप मर्क्यूरी देख पाओगे, वीनस यू कैन सी। तो वो चीज़ भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि व्हेन दैट वाज द स्पॉट टाइम मैंने देखी हुई है। सो समटाइम्स इवन व्हेन आई सो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज लाइक कि पता नहीं वो भी है जो मैं देख रही हूँ कि इट्स जस्ट माई एजम्पशन। यस। But no, then later on when I see the pictures on Instagram and everywhere people have shared, I feel कि नहीं ये या तो मैंने देखा है, so I am into this.
सो अभी हम सब्जेक्ट को एस्ट्रोनॉमी की ओर स्विच करने से पहले एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यू आर अ बुक रीडर, राइट? यस। तो बुक आप सॉफ्ट कॉपी प्रेफर करती हो या फिर हार्ड कॉपी, जो हम हाथ में लेकर पढ़ते हैं, बुक का जो फील होता है उसमें? और आज की जो जनरेशन की बुक्स हैं, जैसे किंडल आ गया, गूगल प्ले बुक्स आ गए, ऐसे बहुत सारी पीडीएफ ऑप्शंस हैं, तो उनमें और ये जो एक्चुअल बुक है, पेपर वाला बुक, उसमें क्या फर्क है? और क्या आप उसके बारे में आप क्या कहोगे? वेल आप मुझे ओल्ड स्कूल गर्ल का या कुछ भी, आई वुड से कि जो हार्ड कॉपी है बुक की, उसमें जो मज़ा है वो डिजिटलाइजेशन में नहीं है। ओके, समटाइम्स व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ बुक्स और हम लोग वी ट्रैवल समवेयर जहाँ पे हमारे पास बुक्स नहीं है और हम लोग डिजिटल बुक्स रीड करें, दैट्स ओके। लेकिन वो जो पेपर की स्मेल है, वो पेपर का टच, वो जो कनेक्शन फील करवाता है आपको रीडिंग की तरफ, वो चीज़ें ये चीज़ नहीं दे सकती। और चैलेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ कुछ, तो या हार्ड कॉपी है कि यू हैव टू कैरी देम एवरीवेयर, और सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन में ही आ जाती है। बट ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल साइड, इफ यू सी हार्ड कॉपी आप ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हो। यू कैन गो फॉर वन बुक एट अ टाइम, लाइक 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे में आप एक बुक खत्म कर सकते हो। बट दैट इज नॉट द सेम केस व्हेन इट इज सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि यू विल स्टार्ट योर आईज विल स्टार्ट स्ट्रेसिंग आउट, यू विल नॉट फाइंड गुड टू रीड। यहाँ पे है रीडिंग मोड्स वो लोग दे रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट, ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने की है। आई हैव फाउंड कि जो या मज़ा आना चाहिए, कोई अगर लाइन अच्छी लगे तो पेंसिल से अंडरलाइन करना, उसको रिमार्क में डालना, उसको स्टार करना, वो जो अपनी बुक में खुद यस, करने की चीज़ है, वो फिल आपको किंडल पे सिलेक्ट करके फिर अंडरलाइन में ड्रैग करने में नहीं आएगी। सो यस, आई वुड गो एक्चुअली विथ एक्चुअली हार्ड कॉपी। ओके, सो अभी आज के लिए आपने कौन सी बुक प्रिपेयर की है हमारे साथ शेयर करने के लिए? वेल, एज आई सेड कि मुझे एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, सो व्हेन वी डिसाइडेड आई वेंट थ्रू फ्यू बुक्स एंड आई रियली फाउंड दिस बुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट वाज एस्ट्रोनॉमी फॉर बिगिनर्स बाय माइल्स क्लार्क। वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक मुझे इसलिए लगी बिकॉज एज यू आर एन एस्ट्रोनॉमर, तो आपके पास जो टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है एस्ट्रोनॉमी की, वो बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में पता है। लेकिन व्हेन समवन लाइक मी, लाइक अ लेमन कम्स इनटू द पिक्चर, उन लोगों को नहीं पता रहता है। सो आई एम हियर, लाइक आई हैव फाउंड आउट अ बुक जो आप अभी डिस्प्ले पे दिखा रहे हो, कि उस बुक में क्या है कि इट इज़ स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक्स। उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो इतनी ईजी है कि एवरी वन कैन गो थ्रू इट, इवन इफ यू आर नॉट अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, यू कैन गो थ्रू दैट बुक। और जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो बहुत बेसिक से लेके आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि जिनको पता ही नहीं है कि मून क्या है, वो भी वहाँ से स्टार्ट करके इनटू द डेप्थ जा सकता है। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने दिया है फॉर द बिगिनर्स टू स्टेप इनटू दिस यूनिवर्स एज एन एस्ट्रोनॉमर, वो बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें। लाइक देर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर, या बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू मी, माय पर्सनल चॉइस, आई वुड रेकमेंड कि आप इससे स्टार्ट करो, देन यू विल लाइक इट। ओके, सो एक और बात मैं बता दूं जो भी व्यूअर्स हैं कि बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं कि जिसे आप देखकर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ना सीखना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर गुजराती की बात करें तो गुजराती में भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जयमल परमार की गगन्य गोखे, फिर नगेंद्र विजय की कॉस्मोस, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि जो बंसी की ओर से हैं, वो स्टारगेजिंग इंडिया की चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स मिलते रहे। और रीडिंग रिलेटेड जो कोई भी अपडेट चाहिए तो जो स्टारगेजिंग इंडिया से आए हैं जो व्यूअर्स, वो सब बंसी को भी सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे, तो आपको रेगुलर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, विच इज द मोस्ट परफेक्ट बुक फॉर द बिगनर्स। तो उसके लिए Yes, अगर that's एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में आप सिंपल डेफिनेशन को लेकर चल सकते हो। उसमें जैसे बंसी ने बताया कि एस्ट्रोनॉमी बिगनर्स गाइड टू द यूनिवर्स, वो भी बढ़िया है। अगर गुजराती रीडर है और गुजराती की बुक आपको पढ़नी है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कॉस्मोस। कॉस्मोस इज रिटन बाय नगेंद्र विजय इन गुजराती। और बहुत सारे जो बुक्स हैं वो
आपको कॉस्मोस सीरीज में मिलेंगी। हर एक अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कॉस्मोस की पूरी किताब लिखी हुई है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा स्काई को देखने का। तो उसके लिए यस, मैं एक बुक लेकिन भी उससे लेकर पहले आया हूँ। सो थोड़ी देर के बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। यस, यू कंटिन्यू प्लीज। ओके, एक बात मुझे अपने व्यूअर्स से बतानी है कि द वे वी हैव आवर ओन डिक्शनरी, जैसे हमारी ऑक्सफोर्ड की वगैरह वगैरह डिक्शनरी होती है लैंग्वेज पे बेस्ड, वैसे एस्ट्रोनॉमी की मैकमिलन ने लिखी हुई एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है। जस्ट बिफोर दिस सेशन आई वाज गोइंग थ्रू इट, और मैंने फाउंड आउट कि बहुत अच्छे से सब कुछ उसमें आता है। यू नो द वर्ड्स दैट वर न्यू फॉर मी वेर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। तो अगर आपको अगर कुछ एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इट कैन बी फ्रॉम एनी साइड लाइक फ्रॉम स्टार गेजिंग और फ्रॉम माई चैनल, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। देर आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स जो कभी मैंने सुने भी नहीं थे और जिसके बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग होते हैं। सो यस, और यू नो देयर वाज ऑलवेज अ कंफ्यूजन इन माय माइंड कि वर्म होल और ब्लैक होल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो हाउ दैट गेट क्रिएटेड, डज दैट हैव देयर ओन सेल्फ एग्जिस्टेंस और नॉट। तो वो सारी चीज़ें मैंने, यू नो, इट वाज लाइक आई वाज ब्लेस्ड थ्रू दिस सेशन कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंगली मेंशन्ड इन दिस बुक्स। तो आई वुड से कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी शायद नहीं भी पसंद है या फिर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी अरे आप एक बार जाके बस ये बुक पढ़ लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू गो थ्रू इट। लैंग्वेज भी बहुत इजी है, एक्सप्लेन भी बहुत इजीली किया हुआ है, एंड वंस यू नो यू विल गो थ्रू इट, आई एम डैम श्योर कि आपको मज़ा आने लगेगा, जो मुझे एक्चुअली यस, आने लगा है अभी। and Nikunj and Rahul are suggesting one more books, and I wonder how I missed that. And these are the books from Dhananjay Rawal sir. ओके, अगर आप अहमदाबाद में हैं तो उनका जो सेंटर है अंकुर रॉबी सेंटर, वहां पर आप विजिट कर सकते हो। ही इज ऑल्सो वंडरफुल गाय, और बहुत सारी जो एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब की बुक जो है वो अंकुर रॉबी सेंटर के जरिए उन्होंने पब्लिश की है। उन्होंने खुद लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं कि जिसे आप साइंस बहुत इजी वे में समझ सकते हो। सो ग्रेट। थैंक यू निकुंज एंड राहुल टू पॉइंटिंग दिस आउट। सो यस, अभी या अगर व्यूअर्स को भी कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी और रीडिंग और हाउ टू रीड, या फिर एस्ट्रोनॉमी में कैसे कुछ स्टेप ऑन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई भी क्वेश्चंस हो बुक्स या फिर स्काई या फिर एस्ट्रोनॉमी के रिगार्डिंग, देन यू या प्लीज फील फ्री कि आप कुछ भी पूछ सकते हो। आइदर आई और निशांत कैन आंसर देम। या या सो यस, फील फ्री। सो अभी हम दूसरी कौन सी बुक की बात करेंगे? There was one more book that is again astronomy, but that was for the beginners. और मैंने शायद आप इमेज भी अगर शेयर कर सको तो या उसमें भी उन लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है कि पहले तो यूनिवर्स क्या है। यस, इफ यू टॉक अबाउट दिस अबाउट द स्काई, तो उसमें भी बहुत या अच्छे से एक स्टोरी के थ्रू मेंशन किया हुआ है। दैट इज इनटू अगेन अ बिग फिक्शनल टॉपिक कि भाई देयर वाज अ कपल, और उन्होंने खुद की एक स्टोरी की तरफ से हमें यूनिवर्स की, जो कहते हैं ना कि किस तरह से उन लोगों ने यूनिवर्स के चैलेंजेस को फेस किया, कैसे हाउ दे गॉट अमेज्ड, हाउ दे फाउंड आउट द ट्रूथ एंड द लाइज दैट आर यू नो दैट आर बेस्ड ओवर हियर, वो सारी चीज़ें डिस्कवर की। तो वो सब कुछ इसमें दिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक रीडर हो, लेकिन अगर आप नॉवेल्स ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, देन यू कैन गो थ्रू दिस, बिकॉज ये पूरी एक स्टोरी की तरफ से आपको लेके जाएगा टुवर्ड्स द एस्ट्रोनॉमी एंड रिलेशन। okay, so I have one question from Urvashi Ankit. ओके, I want to start observing sky. I want to identify stars. So nowadays it is too much easy to start observing the sky. पर पहले के टाइम में क्या था कि अगर हम 90s की बात करें, तो when me and my father started learning astronomy, तो कोई पर्टिकुलर उस टाइम पर बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। हम वहां पर उस टाइम पर गुजराती में स्काई मैप्स लेकर बैठते थे, और आसमान के नीचे छत पे बैठकर वो सारे सारे स्टार्स को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना,
और अगर उसमें कोई एक अलग सा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे तो उसे फिर मैप पे नोटिंग करना। सो उसके लिए हम एक ये बुक यूज करते थे। ये 90s में मेरे फादर ने परचेज की थी इन 1994, आई थिंक 95 के आसपास हमारे पास आई थी। तो उस टाइम पर हम ये जो बुक है वो इसमें पूरे ऐसे स्टार चार्ट्स हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको छत के ऊपर सोना है और ये आपके सर के ऊपर ऐसे पकड़ना है। फिर रेड पेपर वाला लाइट या फिर रेड लाइट हम यूज करते थे टू सी दिस मैप। और फिर उसके बाद क्या होता था कि जैसे आकाश में ये कहाँ पर है वो सब चीजें हम नोट करना शुरू करते थे। फिर जैसे अगर कोई एक क्या बोलते हैं कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखता है या फिर कोई मेटियोर दिखती है तो वो देखिए यहाँ पर मेंशन नोट किया हुआ है। यू गाइस कैन सी 23:05 यानी कि 11:05 पर एक लंबी और बहुत फेंट स्लो मेटियोर हमने देखी। डेट थी 22 दिसंबर 1998। तो उसी तरह ये जो नोटिंग था वो करते थे। फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर हम पूछते थे हमारे सीनियर्स से। जैसे अभी देखिए यहाँ पर एक है शुक्रवार 19 मार्च शाम को 7:35 को सैटेलाइट देखा। कौन सा हो सकता है वो फिर सस्पेक्ट करते थे। जैसे आज हम आईएसएस देखते हैं तो आईएसएस का उस टाइम पर वजूद नहीं था। उस टाइम पर रशिया का एक ही स्पेस स्टेशन था मीर, तो उसका शायद सस्पेक्शन है। फिर यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है 1998 में एक कॉमेट दिखा था। सो कॉमेट का हेड यहाँ पर था और ये पूरी जो टेल बनी हुई है ये ऑब्जर्वेशन है 19 दिसंबर 1998 का। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बुक के साथ इन एंशिएंट टाइम वी कैन से इन 90s वी आर ऑलवेज डूइंग विद आवर बुक्स, एस्ट्रोनॉमी बुक्स। सो अभी आगे क्या बात करेंगे वंशीमा? वेल निशांत, एक विमल दुबल है जिनको चाहिए कि आप वापस जो नेम आपने अभी दिखाया अपना बुक का, जो आप और आपके फादर साथ में कर रहे थे, या उसके बारे में ब्रीफ करें बिकॉज ही कैन नॉट सी द फुल नेम। ओके। सो ये जो बुक है वो स्टार एटलास है, एडमंड स्टार एटलास। ये मैग 5 यानी कि इस मैप में मैग्नीट्यूड 5 तक के स्टार्स हैं। अभी तो आप सभी के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। सो आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं कि जिसमें अच्छी स्टार डिटेल्स हो। यस। सो उसके साथ आप एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई भी बुक रीड करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड अगर कोई भी बुक रीड करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करना है और वो फिर कैसे आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी बुक, इट्स लाइक अ फैक्ट बुक। ट्रू ट्रू। वैसे आई वुड से वो हियर कि अगर स्टोरी बुक्स है तो आप बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हो। यू नो इट्स अ वन सेटिंग बुक, क्या आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट बुक है देन कभी ऐसा होता है कि यू गेट बोर्ड इजीली, या फिर आपको ये फील होता है कि इसके आगे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, क्या करूँ, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके लिए देर आर मेनी वेज टू गो ऑन इट, जो मैंने भी स्टार्ट किया था and which helped me to move on with my psychological part. और इट्स जस्ट दैट कि अगर आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हो तो उसको आप अपने लाइफ कैरेक्टर जो होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के भी साथ वो चीज़ें जो आपने पढ़ी है उसको किसी के साथ एग्जाम्पल में सेट कर दो अपने माइंड में। स्टार्ट गेटिंग लाइफ एग्जाम्पल्स। तो वो क्या होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक कनेक्टिविटी लाने में। और एक बार अगर आप स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये एग्जाम्पल कैसे मैच हो रहा है, याद नहीं रह रहा, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप ये 5-6 बार कर रहे हो उसके बाद
आपको करना ही नहीं पड़ेगा. वंस यू रीड अ स्टेटमेंट, आपको अपने आप ही आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग. सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप कोई बुक जो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी की बुक्स है, उसको खुद की पर्सनल लाइफ से ऐड करके आप कनेक्टिविटी फाइंड कर सकते हो. दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो, यू स्टार्ट मार्किंग थिंग्स. जब हम लोग कुछ मार्क करना स्टार्ट करते हैं, देन वी स्टार्ट गिविंग आवर 100% कॉन्सेंट्रेशन इन टू इट. अगर आप ऐसे ही लेट के पढ़ते रहोगे फैक्ट्स बुक जैसे एस्ट्रोनॉमी है, तो आपको Yeah. मजा नहीं आएगा. बट व्हेन यू आर सिटिंग और व्हेन यू आर इन सम पोस्ट की जगह पे आप अंडरलाइन कर सको, कुछ मार्क कर सको, कुछ Yeah. लिख सको, देन यू विल गिव योर कॉन्सेंट्रेशन इन टू इट एंड यू विल स्टार्ट इंजॉइंग. और जो भी आज आप पढ़ रहे हो, अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करो तो आज जो भी आप पढ़ रहे हो, स्टार्ट एनालाइजिंग दैट थिंग्स. और रात को अपने टेरेस पे जाके स्टार्ट डूइंग दैट कि आप वो चीज़ ऑब्जर्व करो स्काई में, अगर पॉसिबल है तो. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन इवन गूगल इट एंड यू कैन सी देम प्रैक्टिकली, क्योंकि जो चीज़ हम लोग देखते हैं एक बार, वी डोंट फॉरगेट देम इजीली. So that can also be Yes. done in a in a way to get yourself connected with these books. So now I'm going to read something from this book. This is written by Nagendra Vijay, Cosmos series है. So जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बुक पढ़ने से पहले इतना इतना जो है वो जरूर पढ़े. And it's all about knowledge. Yes. So अभी I will read just first पैरा कि कितनी सिंपल लैंग्वेज में एस्ट्रोनॉमी की बुक्स भी लिखी हुई हैं. So it's in Gujarati, so I'm going to read in Gujarati. उसके बाद आप थोड़ा सा हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा. ओके. So अज्ञान यानी कि इग्नोरन्स અને જ્ઞાન यानी कि નોલેજ એ બંને વિપરીત અર્થવાળા શબ્દો છે. માટે તેમને એકબીજા સાથે 12 ગાઉનું છેટું હોવાનો. Have you heard or I repeat? No. It's good if you can come back again. Yeah. So અજ્ઞાન means ignorance and Yes. જ્ઞાન यानी कि knowledge એ બંને વિપરીતાર્થવાળા શબ્દો છે. માટે તેમને એકબીજા સાથે 12 ગાઉનું છેટું હોવું આપણે ધારી બેઠા છીએ. ધારણા સાચી છે? જવાબ નકારમાં એટલા માટે આપવો પડે કે કમસે કમ બ્રહ્માંડના ક્ષેત્રે તો અજ્ઞાન તેમજ જ્ઞાન વચ્ચે છેટું નહીં બલકી નિકટનો ગાઢ સંબંધ છે. બંને એકબીજાના કારક છે. અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન જન્મે અને જન્મેલા જ્ઞાનમાંથી નવું અજ્ઞાન. જુદી રીતે કહો તો બ્રહ્માંડમાં માનવજાત પોતાના જ્ઞાનની ક્ષિતિજ નવા સંશોધનો વડે જેટલી વિસ્તારે એટલી જ તેના અજ્ઞાનની ક્ષિતિજ આપોઆપ વિસ્તરતી જાય છે. અજ્ઞાન સૂચક નવા પ્રશ્નો નજર સામે આવે છે. ઉખાણા પ્રકારના એ પ્રશ્નો કે જે નવા સંશોધનોને કારણે મગજમાં ઉદ્ભવ્યા. વળી નવું સંશોધન કરી માનવ મગજ જ્યારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવે, જ્ઞાનરૂપી મેળવે, ત્યારે એ જ્ઞાનના પગલે તેના મગજમાં ફરી નવા પ્રશ્નો ફૂટી નીકળે અને ખબર પડે કે જ્ઞાન ભેગા પાછા અજ્ઞાનના સીમાડા પણ વિસ્તર્યા. હવે આ જ્ઞાન પર અજ્ઞાનનું કે અજ્ઞાન પર જ્ઞાનનું અચવાડું પાથરવું હોય તો દરો નવું સંશોધન અને વાતનો અંત જ નહીં. અને and I have read this para because it gives you a clear indication that how unendable this universe is. આપણે જે हम जो अनंत कहते हैं ब्रह्मांड, वो कैसे अनंत है उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये एक पैरा पढ़ा है. So can you explain this something Yes, for our viewers? Yes, Yeah. it was a beautiful paragraph that I came across right now. It's like कि अगर कुछ है हमारे मन में, जो हम लोग देखते हैं, we get curious about knowing that thing, and once we get curious, we start finding, we start analyzing, we start researching about them. एक बार उनके आंसर्स मिल गए, again there's something that comes up और जो again हमें curious बनाता है. So there's never ending process. एक बार हमें कुछ मिला, उसमें से और कुछ मिलता है, उसमें से और कुछ मिलता है. तो आई वुड से कि जो इन्होंने बहुत अच्छे से एस्ट्रोनॉमी के लिए डिस्क्राइब किया है, वो एस्ट्रोनॉमी में तो है ही है, लेकिन सारी चीजों में अगर हम देखें तो वही चीज होती है हमारे साथ. और अगर और एस्ट्रोनॉमी इज अ टॉपिक कि जहाँ पे वी डोंट नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इट येट.
हमें जैसे लगता है कि वी नो व्हाट गैलेक्सी इज, बट वी अगेन फाइंड समथिंग न्यू. We again find that there are 1,000 galaxies. We again find that there's some new thing coming up. We don't know how, how these things pop up. And when we start researching about that and we come to a conclusion, again we find that there's something new for us already ready to research on. So it's like कि आप जितना भी इसमें अंदर जाओ, जितने भी अपनी लाइफ you contribute n number of years and still you have that question mark in front of you जिसके लिए आपको आंसर सर्च करना ही है. यस एंड दैट इज द थिंग कि जैसे हम अगर एस्ट्रोनॉमी एंड रीडिंग की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी को भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं कि जिन्होंने इतना इजी बना दिया है कि आप जैसे कोई फिक्शनल साइंस फिक्शन स्टोरी या फिर मूवी देख रहे हो ऐसा आपको फील आता है. और ये काम किया था फर्स्ट टाइम, अगर ये ऐसा कोई किसी ने काम किया था तो वो थे जस्ट रिकॉल मी हिज नेम, आई कांट रिकॉल राइट नाउ, बट उन्होंने कॉस्मोस सीरीज सबसे पहले लिखी थी. जैसे नाम मुझे याद आएगा मैं आपको शेयर करूंगा. और दूसरा क्या है कि उसके बाद से जो साइंस को सिंप्लीफाइड वे में समझाने की जो पूरी प्रोसेस हुई, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी बुक्स आई कि जिनमें आप ये सब चीजें एक अलग वे में, एक सिंपलेस्ट वे में आपको ये मिलती है. सो ऐसी ही एक और बुक है, राइट नाउ मैं कैमरा रिवर्स करता हूँ. सो ये है जैमल परमार्स गगनना गोखे. इससे भी अगर ये बुक ऐसी है कि आप किसी भी पेज से स्टार्ट कर सकते हो. एंड एस्ट्रोनॉमी की अगर कोई भी बुक आप उठाओगे तो उनमें से मोस्टली बुक्स ऐसी होंगी कि आप किसी भी पेज से स्टार्ट कर सकते हो. सो मैं ये बुक इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इस बुक में हमारी जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकल एस्ट्रोनॉमी, जैसे कच्छ का जो एटमॉस्फेयर है, कच्छ का जो वेदर है, तो उसके साथ जो पूरा एस्ट्रोनॉमी जुड़ा हुआ है वो अलग तरह से जुड़ा हुआ है. राहुल, यस, इट्स हर्षल पुष्करनास, Nagendra Vijay, Harshal Pushkarna's father, and he wrote this Cosmos. So उन सब चीजों को इस बुक में इसके साथ जोड़ा हुआ है. सो इस बुक का अगर मैं कुछ पढ़ूं तो ये दिस बुक इज अबाउट द मंथ ऑफ चैत्र मास. सो अभी हमारे पास हमारा वैशाख मंथ स्टार्ट हुआ है, बट इट ऑल्सो रिलेट विद दैट. फुलड़ा फंगोड़ तो चैत्र. तो ये एक पैराग्राफ में आप सभी के लिए रीड करने जा रहा हूं. सो आपको फिर से वही थोड़ा इंग्लिश में हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन करना होगा. ચૈત્રનો સ્વભાવ જ સૃષ્ટિને ચિત્ર વિચિત્ર સાજ સજાવવાનો. કેટલાય ઝાડ પોતાના ફૂલ હૈયામાં સંઘરી ને વર્ષ પર અટુલા ઉભા હતા. ચૈત્રના તડકા પડતા જ ત્યાં તો નવા પાંદડા ધારણ કરી ને ઝાડવા અંતર ઓગાડી ને અંદરથી જાણે ફૂલ કાઢવા લાગ્યા. જુઈ, મોગરો, પારિજાત અને ગુલાબ તો ખીલે જ છે. સાવ સોટા જ ધારણ કરીને તથા પાંદડા ખંખેરીને એકલો ઉભેલો સંઘસેરો પોતાને માથે પીળી જાયવાળી કલગીઓ ધારણ કરી, સંઘસેરો એટલે આપણે ગરમાળો, કલગીઓ ધારણ કરી ખરા તડકા સામે ઉભો છે. વનમાં કેસુડાના ફાલ આવ્યા હશે, એ પણ શહેરોમાં જોવા નહીં મળે. અહીં તો જાણે શ્વેતરંગી બળબડતા તડકા સામે ક્રોધાયમાન થતો હોય એમ સામે આંખો કાઢતો ને ફૂલડા ફંગોળતો ગુલમોર ઝૂલી રહ્યો છે. દિવસભર બાળે છે ચૈત્રના તાપ ને સાંજના સમયે પણ ભાગતો સાપ પૂંછડી મારતો જાય તેમ તાપ ઉના વાયરા મૂકતો જાય છે. વાતાવરણને તપ્ત રાખતો જાય છે, પણ ધીમે ધીમે તપ્ત વાયરામાં અંધારાની શીતળ ઘૂંટાતી જાય છે. વાયરા ઠંડા પડતા જાય છે અને પૃથ્વીને ઠારતા ઠારતા આપણે પણ ठंडा करता जाए छे. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मंथ. और उसके बाद जो है वो इसका पूरा स्काई जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन शुरू होता है कि आकाश में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टलेशंस हैं,
तो जैसे आकाश के तोरण है, यानी कि अपना जो कन्या राशि एंड स्वाति नक्षत्र है उसके बारे में बताया, उसके साथ जुड़ी हुई जो लोकल एस्ट्रोनॉमी है वो भी इस बुक में जुड़ी हुई इंक्लूड की गई है. सो इट्स अप टू यू, योर टर्न. ओके, थोड़ा तो यहाँ आपके पे लिए अभी शायद तो डिफिकल्ट होगा. वेल अभी जो निशान ने बताया, ही वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द मंथ दैट इज बेसिकली गुजराती मंथ जो है दैट इज चैत्र मास. अगर इफ वी Yes. कंसिडर इंग्लिश कैलेंडर, वो मार्च के आसपास आता है, लाइक इट मार्च स्टार्ट्स के नियर बाद, अबाउट यस. इनटू मार्च एंड और मिड मार्च एंड या. अप्रैल में खत्म होता है. सो दैट्स द मंथ. और उसमें ही इज ट्राइंग टू से कि जो हिट है वो बहुत ज्यादा होती है. देयर आर नो मच It's flowers around and April, everything. April to May, mid-May. It starts in May. So So, or during this duration, most of flowers and trees, they are just standing still. Where उन्होंने बहुत अच्छे से describe किया कि how गुलमोहर contributes itself, like किस तरह से वो, in this hot wave, वो एक कहते हैं ना कि अपना कलरफुल वेव्स दिखाता है. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्री जो स्टैंड स्टिल है, उसके नीचे भी हम लोग शेड ले सकते हैं. हाउ द अर्थ इज, स्पेसिफिकली द लोकल एरिया जो है वो पूरा हीट से अफेक्टेड है. और उसके बाद एट द एंड ही इज डिस्क्राइबिंग किस तरह से जब जैसे जैसे शाम होती जाती है, ड्यूरिंग व्हेन इट कम्स अराउंड 4-5, जैसे भी कूल डाउन होता है, वैसे वैसे वो जो शीतलता होती है, दैट इज द कामनेस इन द एटमोस्फियर जो होती है, वो एटमोस्फियर के साथ साथ आपके माइंड को भी काम करती है. एंड अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि नाइट होती है एंड यू अगेन फाइंड आउट द ब्यूटीफुल स्काई. yes, and one more line is there. Gheli chitra mande khel, to kaade unade aane rel. uh, so now now I would like to read some questions in our chat. कुछ questions आए थे, लेकिन ड्यू टू हमारा एक टॉपिक डिस्कशन चल रहा था तो उसमें हम नहीं ले पाए थे. सो क्वेश्चंस इज अबाउट कॉस्मोस कहाँ पर मिलेगा, विष्णु सागर ने पूछा हुआ है. सो सर, अभी लॉकडाउन खत्म होने पर जो बुक शॉप्स अगर स्टार्ट होती है तो वहां से आपको कॉस्मोस मिल सकता है. एंड सेकंड थिंग, अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज आप मुझे कहिए, आई विल अरेंज समथिंग फॉर यू. फिर क्या हमारी प्रिंसी इज आस्किंग, क्या हमारी लाइफ और हमारा नेम स्टार्स से कनेक्टेड है सर? एक्चुअली हम इतने स्टार्स के साथ कनेक्टेड हैं कि आप ये कह सकते हो कि यू आर मेड ऑफ द स्टार्स. इट्स अ डीप थिंग. वो कैसे? क्योंकि जैसे 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 हम अपने विज्ञान को समझते गए, तब हमें मालूम पड़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जितने भी एलिमेंट्स हमारी अर्थ पे मिलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी स्टार्स में बने होंगे. और उसके डेथ की वजह से ये सारे जो एलिमेंट्स है वो फॉर्म हुए हैं. सो वी कैन से कि यस, वी आर द स्टार डस्ट, वी आर कनेक्टेड विथ द स्टार्स. कि जैसे हमारा सन बना, तो सन पहले एक बहुत ही फायरी स्टार रहा होगा कि जिसकी एज जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है, एंड उसके ब्लास्ट की वजह से एक प्लेनेटरी नेब्यूला बनी होगी, और उस नेब्यूला के बाद वापस सन बना होगा, और बाकी के सारे जो हमारे प्लैनेट्स है उसमें अर्थ भी आ जाता है और बाकी सारे भी आ जाते हैं, कि तो वो सारे प्लैनेट्स बने हैं. एंड उस प्लैनेट्स में जो कुछ भी एलिमेंट्स थे वो उस स्टार की वजह से थे, कि जो आज हमारी बॉडी में भी है. तो यस, वी आर कनेक्टेड विथ स्टार्स, बट यस, नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजर्स सेज कि जैसे हाँ, कि आपके ये स्टार्स ऐसे चल रहे हैं तो आपका टाइम अब बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वैसे वी आर नॉट कनेक्टेड विद देम. उसके पहले भी कोई क्वेश्चन था. सो अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू गाइज कैन रीकमेंट इट.
एक है आहिरेत. We are, sir, we just heard about Earth's magnetic field is getting weak and changing their poles. So how we are going through it? तो उसके लिए पूरा हित सेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक बार चेंज नहीं हुआ है, पास्ट में भी बहुत बार हो चुका है. सो इट्स नॉट न्यू थिंग फॉर अर्थ टू चेंज इट्स पोल्स. फिर इफेक्ट क्या होगा कि जो हम अभी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को डिस्क्राइब करते हैं, वो फिर साउथ पोल हो जाएगा. साउथ पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा. सो हमें क्या करना है कि जो मैग्नेट की जो सुई है उसका कलर सिर्फ चेंज करना पड़ेगा. बट फॉर यू, जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं वो इसी मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं. एंड लेट वी सी व्हाट अदर थिंग्स कैन बी डिस्क्राइब इन दिस. लेकिन उसके लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, एंड बुक्स एंड द स्काई पे फिर थोड़ा इरिलेवेंट हो जाएगा. तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो हम थोड़ी देर के बाद, यानी हमारे किसी नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे कि जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट हो. अबाउट द स्काई इज नाइस बुक. Relation between architecture and astronomy. Yes, it's for you. Yes. So like जहाँ तक मुझे पता है ना, if we connect architecture and astronomy, there was a time in ancient कि जहाँ से हमें कोई as an archaeologist अगर किसी को कुछ भी मिलता है, कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट है, या फिर जैसे कि इजिप्ट एंड स्काई इज मच कनेक्टेड, वहां से हम लोग डायरेक्ट रिलेट करते हैं. जो पिरामिड्स है वहां से स्काई डायरेक्ट रिलेट होता है. देयर आर लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट. तो वैसे ही अगर जो भी हमें पुराने मॉन्यूमेंट्स है या फिर जो भी पुरानी चीजें हमें मिलती है, उससे एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स पे स्टडी करने से हमें जो पुराना आर्किटेक्चर है या फिर उनका जो रिलीजन है, जो बिलीफ है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. So this is one of the ways we can connect architecture and astronomy. Yes. एक और बात मैं एस्ट्रोनॉमी के साथ कनेक्टेड बता दूं कि हमारे इंडिया में जितने भी टेम्पल्स होंगे, जितने भी अपना कोई भी पुराना कोई भी स्ट्रक्चर होगा, तो उनका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, वो पूरा का पूरा डिसाइड किया होगा हमारे पोल स्टार से. वो लोग मैग्नेटिक नॉर्थ को नहीं मानते. दे ऑलवेज सी एंड फाइंड द पोल स्टार, और उसी के बाद वो पूरा मंदिर का या फिर टेम्पल का जो कुछ भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उन सब का डिजाइनिंग उसी के बाद तैयार होता था. सो आर्किटेक्चर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Astronomy and all. Yes, true. सो डायरेक्शन है, जैसे आप कोई भी डिजाइन बनाते हो तो उसमें कौन सा डायरेक्शन ओपन रखना है, इवन डायरेक्शन आर कनेक्टेड विद एस्ट्रोनॉमी. With सो astronomy. यस. Uh, અમુક હેત ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ અમુક જગ્યાએ જોયું છે કે નેબ્યુલાના શેપ કમ્પેર કર્યા છે. એક હતું, યસ. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. जैसे रोजेटी नेब्यूला है, तो रोजेटी का जो शेप है वो रोज के जैसा है. फिर ग्लास नेब्यूला है, एंट नेब्यूला है. बहुत सारी ऐसी नेब्यूलाज हैं कि जिन्होंने जिनकी वजह से ये वी आर कनेक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थली बॉडीज. सो best example is Jagannath Puri, is mixture of astronomy and architecture. Yes. So अभी अभी किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो यू गाइस कैन शेयर. सर राइट एसेंशियल मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, बट इट विल बी अगेन ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट. आरे क्या है कि आरे इज अ लाइक longitude. Just I'm going to show you one figure. Just a minute.
so here you can see, तो जैसे ये अर्थ के अक्षांश और रेखांश होते हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि हम अगर अक्षांश को स्काई में इन्फिनाइट हाइट तक एक्सटेंड कर दें, तब जो हमें मिलता है वो होता है डेक्लिनेशन, यानी कि विषुववृत्त से उसका एंगल। एंड उसी तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम यस इफ वी कैन से कि हम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 0 पॉइंट मानकर पूरे अर्थ के आसपास जो रेखांश होते हैं वो अगर एक्सटेंड कर दें, दैट विल बी आर ए राइट एसेंसेस। सो जैसे हम अगर इस पॉइंट को देखते हैं, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स कंसिडर्ड एज अ 0, और पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोब है उसे 24 आवर्स में हमने डिवाइड किया है। सो आर ए विल बी ऑलवेज इन अ फॉर्मेट ऑफ टाइम, राइट। जैसे ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है, इट्स 00 आवर्स, फिर 30 आएगा, फिर 60 होने पर वो 2 आवर 1 हो जाएगा, देन 132। तो जैसे इस पॉइंट से स्काई में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूर है, उतना ही उसका जो हम क्या कहते हैं कि डिग्रिकल एंगल, तो वो उतना ज्यादा हो जाएगा। सो वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो उस टाइम पर जो सन जो होता है वो एरीज में होता है, एरीज में एंटर करता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर took this point as a first point or a 0 degree according. So is it clear, sir? Thanks for finding this image. so so अगर कोई और क्वेश्चन हो तो you guys can share. Why can't I see very many stars at night? Sir, आप कहाँ पर रह रहे हैं? Who is there? धर्मिल, धर्मिल आप कहाँ पर रह रहे हैं? Yes, Dharmal, if you can share your location, I guess Nishan Yes. can help you better. Yes. So where, in which city you are living nowadays? Because it's kind of a little bit delay over there. So Okay. Canada. Oh, Canada में कौन सा city? Because Canada is a cluster of giant cities. एंड जैसे जैसे सिटी की साइज बढ़ती जाएगी, वहां का जो लाइट पोल्यूशन है वो ज्यादा एक्सटेंड होता जाएगा। जस्ट लाइक अभी जैसे हम कोई भी एलईडी बल्ब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी 5-7 एलईडीज होती है, बट यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ईच एलईडी व्हेन इट्स लाइटिंग, राइट। तो सिमिलर वे जैसे दूसरा क्या होगा कि अगर उसके पास में थोड़ा सा दूर एक छोटी सी सिंगल एलईडी जल रही है, उसे भी आप नहीं देख पाओगे। एंड सिमिलर वे जो स्काई है वो हमारी आर्टिफिशियल लाइट से फ्लड हो रहा है, फुल हो रहा है, फ्लडेड, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी फेंट स्टार्स ओवर देयर। तो एंड सेकंड कंडीशन इज पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन क्या है कि उसकी वजह से जो लाइट आ रही है अपना स्टार्स की, तो वो एक तो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से आ रही है, सो बहुत ही वीक होती है, और वो जब हमारे एटमोस्फियर में एंटर होती है तो और ज्यादा स्कैटर होती है। एंड नाउ अब क्या होगा कि अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो उनके ऊपर उनकी लाइट हिट करके स्कैटर हो जाएगी, सो इट कैन नॉट रीच टू properly our eyes, and that's why we cannot see so many stars like we our forefathers have seen. True. What's that? Apparent paradox that if stars are evenly throughout an infinite universe, as bright as night as day, since more distant star would be fainter but more numerous. Yes, that's a different thing. Well, there's one more question for you. Yeah, please ask.
There is Ahir Head. So he's asking, sir, I Yeah. think you have read Stephen Hawking's Brief Answer to Big Question. Review a bit if you have read it. उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे. राइट नाउ जो हमारी टॉपिक है उससे फिर हम ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं. नाउ आई एम ब्रिंगिंग यू बैक टू द टॉपिक ऑफ बुक्स. सो जो आपकी ओर से जो रीडर कम्युनिटी के दोस्त आए हैं उन्हें भी थोड़ा मजा आए, बिकॉज इट विल बी अ टू मच टेक्निकल थिंग फॉर एवरीवन. सो कुछ और अगर रीडिंग के बारे में बात करनी हो, अबाउट योर चैनल, अबाउट योर एक्सपीरियंस. Well, I would say कि after this session I've moved towards astronomy more, so I would now start reading that books also. And I would say कि अगर आपके पास भी including Nishant and all the viewers, अगर आपके पास भी कोई ऐसी बुक्स हो जिनके आपको चाहिए कि I take some review or I give a talk on it, you can always DM me, you can message me in my Instagram or Facebook account. मेरा नाम बंसी दफ्तरी है. You can find me on Facebook, you can find me on YouTube, you can also find me on Instagram. So anytime you can contact me, I'll be available. Within a day I will reply to your questions. और आपका कोई भी suggestion हो, आपके कोई भी questions हो, feel free to ask anytime. And there's one more question, any best time to read book? So it's not a best time to read, it's about when you like to read. अगर आप मुझसे पूछे तो नाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू रीड, और स्पेसिफिकली अगर ट्रैवलिंग में है, ट्रेन इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू रीड. तो एवरी पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स कि आपको कब अच्छा लगता है पढ़ना. व्हेन आई सिट टू रीड, मुझे ना तो कोई नॉइज डिस्टर्ब कर सकता है ना कुछ और चीजें. तो इट अगेन डिपेंड्स. कोई ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स है जिनको शांति चाहिए पढ़ने के लिए, लेट इट बी अ नॉवेल, लेकिन उनको शांति चाहिए. कोई ऐसे भी है इंक्लूडिंग सिस्टर ऑफ माइंड, शी इज लाइक कि वो नॉवेल भी जोर से बोल के पढ़ती है. तो देयर आर डिफरेंट पीपल एंड इट डिपेंड्स टू इंडिविजुअल कि आपको कब अच्छा लगता है. तो फॉर अ स्टार्ट यू कैन गिव इट. आपके लिए रिव्यू करना इजी हो जाता होगा कि क्योंकि वो बोलकर पढ़ेगी और आप सुनकर इजीली रिव्यू कर. लेकिन हम दोनों के जॉनर्स बहुत अलग है. शी इज स्टिल वेरी यंग, तो वो नॉवेल्स लाइक लव स्टोरी ज्यादा पढ़ती है एंड आई एम आउट ऑफ द लव स्टोरी नाउ. बट हाँ, मजा आता है उसको चिढ़ाने में. मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि शी रीड्स अलाउड. तो कभी मैं अगर जाके बीच में पिंच कर दूंगी, देन शी हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ पैराग्राफ बैक. तो लेकिन मजा आता है उसमें भी, एक अलग मजा है. सो यू हैव टू फाइंड आउट योर टाइम. और उसके लिए अगर स्टार्टिंग है, अभी आपका रीडिंग स्टार्ट ही कर रहे हो, देन स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ अ ट्राई फॉर 2 to 3 times a day. जहाँ पे भी आपको मजा आ रहा है, जहाँ पे यू फाइंड कनेक्शन, यू फाइंड पीस, you can start reading from that. So if I talk about the reading pattern, is she the sister of yours which is reading loud? Normally when she asks me questions over here, I am like कि मैं उसको बोलती हूँ खुद से ढूंढो. So this is a platform that she has started asking me questions because यहाँ पे मुझे आंसर करना ही है. क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे व्यूअर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि they can find something new about reading. Here she has asked, can you say something on reading pattern for starters? See, well, it depends on कौन सी book आप पढ़ रहे हो. If you go for psychology or philosophy, as I said earlier, जैसे आप non-fiction books पढ़ते हो, you take a pencil in your hand and you read, so that will help you more. और अगर आप नॉवेल पढ़ रहे हो तो वैसे भी आपको क्यूरियोसिटी वो डाल ही देंगे. 2 States जैसी बुक अगर आप रीड करते हो चेतन भगत की, तो वो आपको वैसे ही क्यूरियोसिटी डाल देंगे कि इट्स अ लव स्टोरी और दिस जनरेशन दे लव स्टोरीज. Drumil is asking, here you can see sun and moon both in a daytime. So it happens many times. जैसे अगर हम बात करें कि अष्टमी है, if you are aware of Indian calendar system, तो guys 30 seconds में ये जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. We are coming live back. So आप सब वापस जुड़ जाइए. Because of limitation of this IGTV, हम 1 आवर्स का ही लाइव सेशन कर सकते हैं. सो इन
10 seconds it's going to be disconnected और हम वापस 2 मिनट में ही लाइव हो जाएंगे.